हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित कोहली और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड अंकित कोहली। दोस्तों, हम हमेशा ये सोचते हैं कि अपना पैसा कैसे सेव करें, कैसे खर्च करें, लेकिन महीने के आखिर तक वो पैसा खत्म हो ही जाता है। इसी सिलसिले में आज हम जिस गेस्ट को आपसे मिलवाने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल है। वो टैक्स गुरु हैं, वो मॉडल हैं, वो सीए रह चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। आप लोग मेरा चैनल देख तो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए नए नए गेस्ट लेकर आए, अच्छे अच्छे गेस्ट लेकर आए, क्योंकि जितना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप उतने ही अच्छे गेस्ट आपके लिए ला पाएंगे। दोस्तों, our guest for tonight is a very special person and my very good friend, Mr. Sharad Kohli. Please welcome Mr. Sharad Kohli on our show today. So let's begin the show. Please welcome Mr. Sharad. Thank you so much. Thank you. Sir, I just wanted to ask you that how was your journey throughout the economy of India and throughout your journey? How was your journey from the start? Well, it's been more than 35 years now. I've been, practicing finance and in the field of economics as well. I think I've seen the country from 19. I remember when I passed out my college, it was about like the 80s. The economy was totally different. The way people used to look at finance was totally different. The way government used to manage finance and economics was totally different. And I think we've come a long ways. These 3.5 decades, I feel we have evolved into a very, very powerful nation vis-a-vis finance and economics. So the journey of becoming the fifth largest economy in the world have been very fascinating for me in person because I had seen it grow bit by bit. And obviously, as a citizen, you being proud that your country is now close to $4 trillion. And well, I feel as an economist, I've been part of this journey. और मुझे लगता है कि उस जितने साल बीते हैं और किसी न किसी तरीके से हर भारतीय का उसमें योगदान रहा है उसमें they have contributed in their own way. And as an economic analyst, हम लोग थोड़ा उसको और डीप डाइव करते हैं, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसके कंपर्स एनालाइज करते हैं. I think it's been very fascinating, and I'm very excited for the years to come. सर, मैं कहीं पढ़ रहा था, आप मिस्टर इंडिया में भी आपने पार्टिसिपेट करो, तो हाउ डिड यू गेट इनटू मिस्टर इंडिया सर? मतलब आप हैंडसम है, स्मार्ट है, बट थैंक यू सो मच. मैं बेसिकली इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं फाइनेंस से आता हूँ. और पर एक मेरा जो पहलू है वो फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है. हमारे जो बिजनेस ग्रुप में we got a design campaign with us at Incidentally, I lead the team of designers. So fashion industry से तो there was always a connection, and some of my friends in Mumbai when this pageant was happening, तो क्या हुआ था कि जो married made category में मिस्टर इंडिया बहुत कम देखा जाता है. Normally, you fight niggas कहीं पे लगा के, body builders आपको देखते. Normally they are not married, they are all bachelors who do it. So there was a married man parent, and one of my brides from Bollywood, she referred to me, and she almost posed me that you should participate. We never had a finance person walking the ramp. So that's how I got to do it. And, fortunately or unfortunately, I came out as a winner, and it was a surprise for me also and my company because they were used to seeing the finance person. I went dual chartered accountant from India. I really like I've done my finance for Howard. I'm an operator in economics, a lawyer as well, with MBA in finance. तो हार्ड कोर कॉमर्स और फाइनेंस की स्टडी करने के बाद सडनली आप किसी के ऊपर एक क्राउन लगते हुए देखें. वेज को क्राउन कभी बना के तो टाइम आई टॉक बोन इन सिंबॉलिक फॉर्म के क्राउन लगते हुए मैं दैट यू नॉट अंडरस्टैंड द मैन विद दैपिकली डाउन. सो इट वाज क्वाइट अ सरप्राइज, वेरी इंटरेस्टिंग. मैं समझता हूँ कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स तो जो लोग थोड़ा सा बोरिंग समझते हैं, थोड़ा सा इतना आधा लगते हैं, अच्छा सा एटलीस्ट दैट tarta would always be with me for the rest of my life. journey from student to CA to Mr. India to financial advisor now.
Sir, as a financial advisor, I want to ask you, what is the saving mantra जो आप हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को इजी वे में सुधार सकते हैं? कि सर सब ये लोग समझते हैं कि हम सेव नहीं कर पा रहे। 15,000 रुपए की सैलरी वाला बंदा भी यही सोचता है, 1.5 लाख रुपए की सैलरी वाला बंदा भी यही सोचता है, और 15 लाख रुपए की सैलरी मतलब भी सोच रहे हैं कि यार कुछ बच ही नहीं रहा। सो मंत्रा क्या है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, you know, because you always short of money and I think no income is enough for unless you have billions and millions of dollars, तो बात अलग है। पर बिल्कुल आपने ठीक कहा, because इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि they are doing it the wrong way, you know, because all you need to do is that savings should be considered as your expense। अगर आप सेविंग्स को एक खर्चा मान लेते हैं, खर्चे तो आप करते हैं ना, आप घूमने फिरने पे करते हैं, यू स्पेंड ऑन गोइंग आउट, यू स्पेंड ऑन हॉलिडे, यू स्पेंड ऑन योर एजुकेशन, यू स्पेंड ऑन एवरीथिंग, योर क्लोथ्स, एवरीथिंग। और सेविंग्स को आप अगर खर्चा मान ले, और जैसे ही आपकी सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, जहाँ से भी कमाई होती है, जैसे ही आए, उसका 20% निकाल के आप जैसे ही वो हिट करे, फौरन आप एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर, अलग है लोग इसके ध्यान देने वाली बात है। तो आई थिंक दिस इज द मंत्रा दैट इफ यू ट्रीट योर सेविंग एज एन एक्सपेंस, एंड दूसरी गलती लोग कहते हैं कि जो कुछ बच गया वो सेविंग्स। तो आप यू सेइंग द सेम थिंग कि बचा तो कुछ है ही, तो सेविंग्स ही हुई, पर सेविंग मंत्रा इज दैट ट्रीट सेविंग एज एन एक्सपेंस, slash off 20% from your income, keep it to another bank account, and that is how you will be able to save। Otherwise आप बचने का इंतजार करेंगे तो कभी कभी बच नहीं पाता, ऐसा नहीं है that you're never able to save, but वो भी you know you have a very casual attitude to that, ठीक है बड़ा है मेरा, मेरे पता लगा तो बड़ा खर्चा आ गया, वो भी खर्च हो गया, और now हार भी नहीं गया। So it's a very roller coaster kind of a ride as far as especially you rightly said the youngsters, you know, they need to get this habit। This is a rule of 50-30-20। if 50% आप you know अपनी ज़रूरतों पे खर्च करें, 30% आप अपने जो कंफर्ट्स होते हैं उस पे खर्च करते, 20% को आप सेव करते हैं। So that old policy I think seems to be re-implemented and it should be brought back to the life of youngsters। So that is the saving mantra। So the old formula means salary minus expenditure is equal to saving। देख गलत है देश। फॉर्मूला ये होना चाहिए, एक्सपेंडिचर बाद में, Salary minus savings is equal to its gain। That's the month। या दैट्स सर। एक क्वेश्चन मेरा दिमाग में था कि आजकल की हम लोग 20-25 लाख रुपए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारा बजट नहीं होना चाहिए। मतलब 30-35 साल की एज की लोगों के लिए 20-25 लाख रुपए आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग सर ऐसी कहाँ तक किस जगह इन्वेस्ट करें वो 20 से 25 लाख रुपए? क्या वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, क्या वो हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, या वो हम स्टॉक मार्केट में एफएनओ में इन्वेस्ट करें? खत्म लग। You see, you have to spread your risk first of all। There's a saying for savings, you never put all your eggs in the same basket। जब आप 20-25 लाख की बात कर रहे हैं, पहले तो वो सब पीती जला रही है चाहिए यार, ये जितने जितने ये नाप लिए इतने से पीसी भी एक जलाब है, रिकमेंड नहीं कर। इस सबको मैं खिला दूँ, मैं क्या करूँगा कि अगर 20-25 लाख है तो कुछ मैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखूंगा, लिक्विडिटी भी मिनिमल पड़ सकता है, कुछ मैं म्यूचुअल फंड्स भी करूँगा, कुछ हिस्सा उसका 5-7% में स्टॉक मार्केट में। अगर मुझे जानकारी मिली और अगर एक्सपर्ट गाइडेंस है तो शायद तो ज़्यादा भी कर सकता हूँ, तो आप भी विल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। और रियल एस्टेट की आपने बात करी, रियल एस्टेट एक थोड़ा सा मैं डिफरेंट स्पेयर मानता हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बहुत लंबे वक्त के लिए होता है। रियल एस्टेट में ऐसे छोटे वक्त के लिए नहीं होता। तो रियल एस्टेट को मैं अलग रखूंगा, क्योंकि वो अगर मुझे रहने के लिए चाहिए, घर चाहिए, काम करने के लिए ऑफिस दुकान कुछ भी चाहिए, उसको मैं अलग रख के चलूंगा, क्योंकि वो अलग है। ये जो आपकी टोट, और हाँ अगर आपको 20-25 लाख आए हैं और आपको जरूरत है कभी, जरूरत है दुकान की, ऑफिस की, तो फिर तो बात अलग हो गई। पर अगर खाली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि 3-4-5 एवेन्यूज में, कुछ गोल्ड भी वैली करना चाहता हूँ कि 3-4-5 एवेन्यूज में आप प्रोपोर्शन इसका क्या होगा, ये आपकी रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। आर यू वेरी रिस्क टेकिंग पर्सन, यू लाइक टू गो मोर इनटू स्टॉक्स। इफ यू आर लेस रिस्क टेकिंग, यू कैन गो इनटू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी टेक होते हैं, इक्विटी होता है, ज्यादा रिस्क भी लेने जाते हैं, बट इक्विटी इज आई, यू वांट अ सेफ एंड साउंड विकेट, यू कैन गो इनटू डेट। Or you can, probably 15-20% तो मैं मानता हूँ आज में गोल्ड पे रखना चाहिए। Do that also। So it all depends on the risk appetite। वो फिर हम क्या करते हैं अंकित के, उसमें हम पूरी
पूरा का पूरा एक प्रोफाइल बनाते हैं, उनकी को ऐसी सवाब होती है तो पूरा उसका एक प्रोफाइल बनाते हैं, उसको समझते हैं उसकी ज़रूरतों को, उसने आगे जाके रिटायरमेंट कब लेनी है, शादी क्या लगी, खुद का कम है, अ, बच्चों वगैरह का प्लान क्या है, एजुकेशन के लिए हॉलीडेज कब जाना है वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग द मंत्रा इज दैट स्प्रेड योर रिस्क एंड नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। सर लेमैन या जो नए नए आते हैं लोग स्टॉक मार्केट में, वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि 10 रुपए का शेयर बताते हैं, कोई 20 रुपए का शेयर बताते हैं, कोई 100 रुपए का शेयर, 50 रुपए का शेयर बता दो। हर आप यही सोचता है कि वो 10 रुपए का शेयर हम खरीद के एमआरएफ बना देंगे इस पे, कि हमारे पापा या दादाजी ने एमआरएफ का शेयर दिया होता तो आज हम हमें काम करने की जरूरत है। ऐसा क्या रास्ता है, जरिया है? क्योंकि सर मैं आज तक देख रहा हूँ बहुत सारे, नाम ही लेने दादा, लेकिन बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे लोग रिकमेंडेशन देते हैं, जो पहले से ही शेयर्स अब खरीद लेते हैं और फिर वो रिकमेंडेशंस देते हैं, वो शेयर ऊपर जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है और फिर कभी ऊपर आता ही नहीं है, वो कंपनी ही बैठ जाती है। तो ऐसी किस जगह या किसकी रिकमेंडेशंस पे हमारे को चलना चाहिए, किस रास्ते पे हमें शुरुआत करनी चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट को अच्छा माने? क्योंकि हमारे फादर, हमारे दादाजी इसको गलत ही मिथ मानते हैं। 1992 में जब हर्षद मेहता जी का स्कैम हुआ था, तब से लेके अभी तक इसको सिर्फ जुआ ही माना जाता है। भले ही इतने सारे डीमैट अकाउंट बन गए हैं, लेकिन आज भी अगर कोई स्टॉक मार्केट में कर रहा है तो उसे लक ही बोला जाता है, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के बाद में कोई बात नहीं। I think that is an old school of thinking. इसको जुआ बांधना है, इसको खाली क्योंकि स्पेकुलेशन भी होता है स्टॉक मार्केट में, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। एफ जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जिसको हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग बोलते हैं, उसमें काफ़ी हद तक स्पेकुलेशन। आप अगर उसको जुआ भी किसी किसी तरह से कहा जाए तो वो बुरा नहीं होगा। जो लोग 10 बजे बेच दे, 11 बजे बेच देते हैं, तो नेचुरली बहुत हाई स्पेकुलेशन है। बट ये जो आपने पहले बात कही कि 10 रुपए का शेयर था वो दादाजी ने खरीदा, वो एमआरएफ बच जाए, तो मार्केट में अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, so there is a lot of money it will make through stock market. There are hundreds of stories where people have bought the shares, forgot about them, and suddenly they found they had gone into crores. A few hundred or a few thousand rupees invested went to several crores. So I think long term is the key word in stock markets. और जो लोग बहुत short term करते हैं, जितना आप short term stock market में करते जाएंगे, उतना आप speculation की तरफ move करते जाएंगे, और जितना आप लॉन्ग टर्म करते जाएंगे उतना आप स्पेकुलेशन से इन्वेस्टर बनते हैं। सो आई थिंक वी नीड टू आंसर टू योर क्वेश्चन लाइज इन द फैक्ट that there are two kinds of people in the stock market. One is the investors, the others are the traders. तो हम सलाह देते हैं कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप करें, कोई रोक टोक नहीं है उस पर, पर कोशिश करें इन्वेस्टर, मतलब आप उसको शेयर्स को रखें, आप उसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितना लंबे समय तक। और शेयर की जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत इंटेलिजेंटली होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, बहुत एनालाइज करके होनी चाहिए। उसको फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं, आजकल तो इंटरनेट पर बहुत कुछ अवेलेबल है, खुद पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में आप पढ़ सकते हैं। सो माय एडवाइस इज दैट you should either consult an expert or gain full knowledge and then get into any kind of stock market business. किसी कंपनी का सर पी हाई होता है, किसी कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होता है, तो जो पसंद आ रही है उसका पी इतना हाई है कि समझ में नहीं आता व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर एक लेमैन को कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए क्या टिप होगी? So I think long-term fundamental analysis is the answer. Where you look at the company, look at the promoters, look at the balance sheet of the company, look at the book value of the company, and you like to say, the EPS and the PE and so it's so debt equity ratio. बहुत कुछ देख के promoters holdings लिपी है, ये सारा balance sheet analyze करते हैं. Then thereafter you see which government policy is impacting that company. What is the order book looking like? What is the track record of promoters? How far they have gone, have they expanded business? उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, क्या वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली या ज्योग्राफिकली, किसी की तरीके से एक्सपेंशन प्लान्स हैं। और उनका जो IQ आया था उसमें वो राइट इशू, बोनस इशू कितने फ्रीक्वेंटली देते रहे हैं, डिविडेंड कैसा दे रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। किसी एक फैक्टर के बेसिस पे यू कांट डिसाइड, यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच
And I think fundamental analysis is a full subject. So I would suggest whosoever follows, your podcast, that they should not go on hear it say. They should always either take help of an expert or become an expert himself or herself. मतलब या तो खुद एक्सपर्ट बन जाए, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की बीक उससे नीचे कुछ नहीं करेगा. उससे नीचे आप कुछ करते हैं तो देर आर वेरी हाई चांसेस. ये स्टॉक मार्केट में लॉस कभी भी किसी को भी हो सकता है. बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी गलती खा जाते हैं. आपने टीवी चैनल्स वगैरह की बात है, वो सब एक्सपर्ट्स होते हैं. और मैं उसकी बात नहीं करता कि वो पहले खरीदते हैं बाद में बेचते हैं और वो अनाउंस करते हैं. उस चीज़ में हम नहीं जाते. पर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन लोगों का बहुत डीप रिसर्च किया हुआ होता है और उस रिसर्च करने के बाद मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल था. मार्केट को प्रेडिक्ट जिसने कर लिया तो वो तो फिर राजा बात है. उसका तो वो एंड ही रही है. सो यू कैन ओनली मेक एन एनालिटिकल व्यू अबाउट द मार्केट. यू कैन ओनली गिव एन एनालिटिकल व्यू अबाउट द स्टॉक. सो यू कांट ब्लेम द पर्सन कि भाई उसने तो कहा था ये ऊपर जाएगा और अब ये नीचे चला गया और ये वही खड़ा हो गया. तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को जो लोग स्टॉक मार्केट को डीपली समझते हैं वो ये ब्लेम उनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है. मार्केट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. आपको मैं अगर ये दिस दिनों के मार्केट किस चीज़ पर रिएक्ट करती है तो शायद पूरी रात भी बीत जाए, लोगों लिस्ट खत्म नहीं हो जाएगी. सो आई थिंक यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी पर्सपेक्टिव. मार्केट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. It's like a child, it reacts to smaller things. Sometimes it doesn't react to very important things. Sometimes it reacts to unimportant things. So therefore, market is a very dynamic, very beautiful place. And I think you should enjoy the journey in the market if provided you're being careful to give one. Market looks like you're really, sir. Yeah. So the thing is, sir, आपके एक दोस्त थे जो बिगबुल के नाम से जाने जाते हैं, राकेश भी. मुझे बहुत अनवीज है. कुछ मेमोरीज हैं सर. बिल्कुल मुझे याद है मैं राकेश के साथ बैठा था. राकेश को वड़ा पाव पसंद था और मैं मुंबई इनके ऑफिस अक्सर जाता रहता था. मेरा उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने मंगाया और आपको पता है मतलब एक तो ज़्यादा मजा ही था जो कि एक कारण भी बना इस दुखद समाचार अभी नेदी में कि वो नहीं रहे. पर मैंने उसको टोका. मुझे याद है, मैंने कहा राकेश भाई आप वड़ा पाव खाते, आपको बनाया मुझे बताया था, हमने सब बताया, मुझे अब खाने से मत रोको. मेरे को जिस चीज़ में मज़ा आता है ज़िंदगी का पता लगे इन दो पैसे बहुत कमा दिए, क्या फ़ायदा आ रहा है, मैं अपनी मनपसंद चीज़ ही नहीं खा पाया तो ये पैसे मेरे किस काम आएंगे. वो ऐसे बोलते थे. तो आई थिंक ही वांटेड टू एंजॉय लाइफ. वो वेरी हैप्पी पर्सन, अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. अपने दोस्तों के साथ भी बहुत क्वालिटी टाइम वो बिताते थे. तो आई थिंक लॉट ऑफ मार्केट ऑपरेटर्स हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम. आई वाज ऑनली फॉर्चुनेट वंस who had the chance of being friends with him, and obviously being friend, we used to have a lot of formal chat about his investment strategies, about his fling with Titan and so on. Like one of the favorite stocks which he had picked up, which transformed his life, I don't say. और उनके बाकी बिजनेस के प्लान्स भी थे. बहुत तक की बात है कि उसको इतनी जल्दी जाना पड़ा. I mean, personally, it was personal loss to be, apart from the loss to the stock market and the investment industry. सर हेल्थ की बात हुई तो आपका एक शो आ रहा है सर, पॉडकास्ट, और सेहत भी पैसा भी, कुछ तो टाइम ही सबके बाद. जी हाँ, सेहत भी पैसा भी बहुत उसके लिए बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं. और एक मेरे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं जो कि शो को होस्ट भी कर रही हैं और को एक्सपर्ट भी है. तो एंकर्स हैं, दोनों ही एंकर्स हैं, दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं. बड़ा यूनिक शो है क्योंकि हेल्थ पर बहुत सारे आप गूगल करेंगे, बहुत सारे शोज हैं. अर्जुनों के हिसाब से आपको भी डॉक्टर साहब कुछ ला रहे हैं, कहीं लोग टिप्स दे रहे हैं. और फाइनेंस पे भी ऐसे आप देखेंगे तो फाइनेंस पे dozens and dozens of shows where people tell you about stock market, somebody telling you about mutual funds, somebody telling you about risk, this and that, and this, but what is not there on the internet is a doctor and a finance expert sitting together next to each other and talking about health and wealth. So I think the show is going to be launched very soon. Probably by the time your podcast goes, that might be on the floor, but it might have on air. And we are very excited about the show. I think there's a whole team which is working, and I'm hoping that you should get very good about the content that we are disseminating to the followers. And this is very unique. And ऐसी चीज़ें जो भी आपने तो बोलते थे कि दो सबसे अहम जरूरत थे, पैसा और सेहत. इन दोनों के बिना जिंदगी बेकार है और उसी को हमने छोड़ने की कोशिश. इस शो के बारे में हम नीचे लिंक देख ली, प्लीज़ सब्सक्राइब करो. चाय सर का अपना चैनल है, और सर से जो भी आपको पूछना है आप पीछे कमेंट कर सकते हैं हमारे हैंडल पे भी,
और सर के हैंडल में भी कमेंट कर सकते हैं. He will definitely reply to you in any way. So next question में ये डालना चाहता हूँ, how bullish are you on India? I'm quite bullish on India. India has now become the fifth largest economy in the world. It is on its way to become the third largest. Germany close to $4 trillion now. And we used to be among the fragile five once upon a time. So we've come a long way. And I'm very bullish with all the economic parameters. I want to bore your audience by giving GDP numbers or forecasting numbers or PMI numbers. But all I want to say is that I think the Indian economy is poised for becoming a superpower, economic superpower in the years to come. And I'm talking direct of politics. I'm not touching on the politics of this. I feel that any government which have been in this place, the country's growth story is irreversible, whether it is the NDA or the UBA or whatever. So I'm not speaking in a very little manner. I'm very bullish on the country. The only challenge to this bullishness is the geopolitical factor, because we're going through a time where the world is standing on the brink of a war. And you have Russia, Ukraine going for obviously 2.5 years now. Gaza conflict going on for more than 6-8 months now. There's tension in the Korean Peninsula. There's tension in the South China Sea. There's tension between China and America, the largest powers in the world. NATO versus Russia. So I feel that the challenge to any economy in the world is geopolitical. Now, otherwise, if everything remains calm geopolitical, कोई और लड़ाई मिसाइल नहीं चलती है, कोई और देशों को भी झगड़ा नहीं होता, लोग इंडिया को सुपर पावर बनाने से कोई झगड़ा हो भी जाता है. मुझे लगता है कि इंडिया उसमें इतनी जल्दी शामिल नहीं होगा और इंडियन इकोनॉमी उस समय और ज़्यादा चमके. हालांकि मैं साथ में जोड़ना चाहूँगा कि उसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट जरूर होगा. एंड इकोनॉमी विल हैव टू टेक अ सेटबैक इन सर्टेन regard, because as of today, as we talk, the world is one family. Every country is connected to the एक देश दूसरे देश को देखता है. तो अगर दुनिया में कहीं होता है तो ऐसा तो नहीं कहा एक फैमिली मेंबर आपका दुखी और दूसरा फैमिली मेंबर खुशी मनाता है, ऐसा तो नहीं हो. So the country will be impacted, but as a country, I feel we will be amongst the best in the world. And I think this decade, starting from 2024 to 2025, I think is India's decade. And you will see India becoming what America became many, many years ago, or what China became a few decades ago. You will see people talking about India more often than not around the world. As India is growing, sir, what India should learn from China's mistake when it was growing, also Pakistan's debt trap. ये दो चीजें सर एक ऐसी चीजें हैं जो इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. As far as China's mistakes are concerned, I think India China वाली गलती नहीं करने वाला है, क्योंकि चाइना एक्सपेंशनिस्ट है. चाइना में जमीन हड़पने का एक थ्योरी वहाँ चलता है, पड़ोसी की जमीन हड़प लो. तो इंडिया वो पॉलिसी नहीं फॉलो करता है. दूसरा, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वन मैन रूल है. आपको पता है चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी करती है. वहाँ के जो प्रेसिडेंट महोदय, मैं उनका नाम नहीं लेता, और वो अब लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बन गए. इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है. यहाँ तो हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, बड़े धूमधाम से होते हैं, लड़ाई झगड़े से होते हैं, डिबेट्स के साथ होते हैं. तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, चाइना डेमोक्रेसी नहीं है. तो जो गलती चाइना ने करी वो इस वजह से करी क्योंकि वो ऑटोक्रेसी है, क्योंकि वहाँ पर वन मैन रूल है, थोड़ी सी हिटलरशाही है वहाँ पर. और जिस तरीके से चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ा नहीं होने दिया जाता. आप जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसकी कंपनी में कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है कि हमारा डायरेक्टर अपॉइंट कर दीजिए, अब हमारी मर्जी से डिसीजंस होंगे. और बहुत सारी वहाँ पर स्टोरीज भी आपने सुनी होंगी. बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि बड़े बने और उसके बाद उनको पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए. तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया वो गलतियां करेगा. जहाँ तक पाकिस्तान की डेट ट्रैप का सवाल है, आई थिंक पाकिस्तान एज अ कंट्री आई फील इज लिविंग ऑन अ थ्रेड and hanging by the thread, because the kind of debt it has on its own economy is massive. Servicing that debt is becoming impossible. तो वो एक कहावत होती है, आप एक की टोपी दूसरे के सर. तो कुछ नहीं करते, वो लोन लेते हैं लोन वापस करने के लिए. तो सिर्फ लोन ले रहे हैं. IMF उनको 13-14 बार बेल आउट कर चुका है. एंड आई थिंक पाकिस्तान इज नॉट लर्निंग द लेसन. दे कीप स्पेंडिंग ऑन डिफेंस. उनको पैसा देश के वहाँ के आवाम के लिए खर्च करना चाहिए. But they end up spending, either on corruption. It goes on corruption. The top generals of Pakistan and the top जो नेता हैं वहाँ के, वो खा जाते हैं पैसा सारा, करप्शन में चला जाता है, या वो टेररिज्म को ब्रीड करने के लिए यूज किया जाता है. भारत के खिलाफ आतंकवाद को ब्रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
सोते जागते उनको कश्मीर का सपना आता है, ना जाने क्यों आता है। कश्मीर ना उनका कभी था, ना है, ना आगे कभी होगा, फिर भी वो सपना देखते रहते हैं। उसी सपने को लेके वो आतंकवाद को अपने आप पनपने देते हैं, उसके लिए पैसे खर्च कर देते हैं। जो पैसा लोगों के पेट में जाना चाहिए था, लोगों को अनाज खरीदने में, लोगों को बिजली, पेट्रोल, ज़रूरतें, लोगों की ज़िंदगी की रोज़ की ज़रूरतें के लिए होना चाहिए था, उस पैसे को वो बर्बाद कर देते हैं इन सब चीज़ों में। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का कोई भविष्य है। मैं क्षमा माँगते हुए कहता हूँ, जो लोग पाकिस्तान के फैन्स होंगे उनको शायद ये बात आहत हो। पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान एज़ अ कंट्री बहुत ज़्यादा देर दूर नहीं है डिसइंटीग्रेट होके। मुझे लग रहा है पाकिस्तान एज़ अ कंट्री खत्म हो जाएगा, अलग-अलग प्रोविंसेस में बँट जाएगा। खतरनाक है भारत के लिए ये बात, क्योंकि इट्स अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, और कहीं गलत हाथों में अगर वो चला गया तो उससे भारत को पड़ोस का खामियाज़ा आपको भुगतना पड़ता है। पड़ोसी को गलती करता है, पड़ोसी बाहर बाल्टी की पानी की बाल्टी भी डाल देता है, तो आप भी उस पे फिसल के गिर सकते हैं, क्योंकि आपका रास्ता भी वही होता है। तो उसको देखते हुए एक चिंता की बात ज़रूर है, पर अफ़सोस की बात ये है कि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, और उसकी शैतानियाँ इतनी है कि हम उसको ज़्यादा काउंसलिंग भी अब नहीं करते, हम तो उनसे बातचीत भी ज़्यादा नहीं करते। हम उनको यहाँ बुलाते हैं, ना हम उनके यहाँ जाते हैं, क्योंकि वो बाज़ नहीं आते हैं बार-बार हमको परेशान करने से। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो सोल्जर्स हैं, उनकी ज़िंदगी जाती है, लोगों की ज़िंदगी जाती है। दोनों तरफ। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बात मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, वहाँ की इकोनॉमी की बात ज़रूर करता हूँ। मैं टेलीविज़न चैनल्स पे पाकिस्तान इकोनॉमी पे बहुत बोलता हूँ, खासकर जब उनको बेल आउट मिलता है। पर अदरवाइज़ मुझे पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बात करना बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ज़्यादा भविष्य ना हो, उसके बारे में आप क्या बात करेंगे? और जिस गली जाना नहीं, उसका एड्रेस क्या पूछना है? ना हमने वहाँ कभी जाना, ना हमें उनसे कोई मतलब है। बस सब कुछ ठीक-ठाक रहे, यही हम चाहते हैं। सर हम जैसे हम सब जानते हैं कि आप एक कंसल्टेंट रह चुके हैं इंडियन बजट में, तो सर क्या आपने टैक्स एडवाइस करा है? जैसे बहुत सारे लोग इंडिया में, ओनली 1% ऑफ द पीपल पे टैक्सेस इन इंडिया। हुँ। सो ऐसे क्या एडवाइस है आपके का गवर्नमेंट को या हमारी आम जनता को, कि टैक्स को लेके कि हमें पे करना चाहिए, किस तरीके से पे करना चाहिए, गवर्नमेंट को कैसे टैक्स लगाना चाहिए? गवर्नमेंट तो एज़ आपसे टैक्स लगाती है, जीएसटी तो पैदा होता बच्चा भी देता है, टैक्स तो इनडायरेक्ट 140 करोड़, 42 करोड़ जनता सभी देते हैं, जीएसटी तो आप देते ही डेफिनेटली। हैं हर आइटम पे। इनकम टैक्स 8 करोड़ लोग करीब रिटर्न्स फाइल करते हैं, उसमें से टैक्स देने वाले 2 करोड़ से कम हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट जो तरीका टैक्स लगाती है, वो सालों से 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना था यहाँ से, और तभी से आज 63 साल हो गए हैं, वही चले आ रहा है। सो देयर्स बीन आई मीन बीच-बीच में चेंजेस आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अमेंडमेंट्स नहीं आती, बट प्रिंसिपली हम एक ही सिस्टम पे काम करें। मुझे लगता है आई मीन एज़ एन इकोनॉमिस्ट आई फील दैट सम अदर टैक्स सिस्टम कैन बी ट्राइड, जिसमें पीछे भी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसमें सलाह आई थी कि आप एक्सपेंडिचर टैक्स लगा दीजिए। जब आप खर्च करते हैं उस पे लगा दीजिए बजाय इनकम के। बाद उसके लिए बहुत बड़े चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे, कंप्लायंस चेंजेस लाने पड़ेंगे, लोगों को तक इस मैसेज को पहुँचाना भी बहुत कठिन होगा। तो मुझे लगता है वो तो अभी कुछ दूर नज़र आता है, बट इनकम टैक्स में मुझे लगता है ऐसा टैक्स जितना जितना कम टैक्स होता है, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। ऐसा दुनिया भर में देखा गया है। सो सिंपल टैक्स सिस्टम वेयर पीपल आर नॉट स्कैर्ड, पीपल डोंट फियर, जहाँ लोगों के मन में डर ना हो, और लोग खुश होके टैक्स दें कि हम देश की तरक्की में अपना योगदान कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टैक्स सिस्टम। सो एट व्हाट एज हम लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? लाइक आई एम 35, तो एक नॉर्मल आदमी को किस एज में फर्स्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना? आई थिंक द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, आपको प्रॉपर्टी का तभी सोचना चाहिए, खासकर अगर आपको रहने के लिए घर चाहिए। तो आपको जिस टाइम आप पहले काम करना शुरू करें, उसी टाइम आप थोड़ा-थोड़ा बचाना शुरू कर दें। और अगर आपको लोन लेना है, कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं लोन की ईएमआई, तो आप लोन फ़ौरन ले लीजिए। जितना जल्दी आप प्रॉपर्टी लेंगे, उतना ही आपको आसानी रहेगी, और उतना ही फिर आपको आगे जाके आप सेकंड, थर्ड प्रॉपर्टी, आजकल तो अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रॉपर्टी का ज़िक्र होता है। एक प्रॉपर्टी तो सरकार ही दे रही है, पीएम आवास योजना में हर सर पर छत सरकार की मुहिम है। तो मुझे लग रहा है एक मकान वाला ज़माना तो पीछे जा चुका है, जिनके पास नहीं है उनको फटाफट ले लेना चाहिए। अब तो दूसरी, तीसरी, चौथी प्रॉपर्टी की बात होती है, तो जितना जल्दी हो, ये तो ऐसा काम है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बिकॉज़ यू नेवर नो, आपने डिले किया तो हो सकता है प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाएँ, या आपको दोबारा मौका ही ना मिले करने। सर पेरेंटेड प्रॉपर्टी तो होती है, रेंटल इनकम के लिए सर विच इज अ बेटर ऑप्शन, रेजिडेंशियल और कमर्शियल? बिकॉज आई थिंक रेंटल इनकम कमर्शियल में बेटर आती है। आपको ज़्यादा पैसा आता है, रेज़िडेंशियल में भी आता है, पर रेंटल इनकम पे हमके डिपेंड नहीं करना चाहिए।
अगर आप रेंटल इनकम पर डिपेंड करने लग गए तो हमने कुछ लोगों को आलसी बनते देखा है कि किराया आता है, मजे से बैठो, सारा दिन इधर उधर बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो रेंटल इनकम होना बुरी बात नहीं है, पर मैंने ज्यादातर जो लोगों को रेंटल इनकम कमाते देखा है वो लोग अपने काम से हट जाते हैं। और काम से हटने का मतलब है कि उनके दिमाग को जंग लगना शुरू हो जाता है और उनके अंदर जो एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी थी वो भी खत्म होने लग जाती है। सो आई फील, बट टू आंसर योर क्वेश्चन वेरी प्रिसाइसली, कमर्शियल प्रॉपर्टी इज डेफिनेटली बेटर। रेजिडेंशियल उतना रेंट नहीं दे पाती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में बेटर रेंट आता है, पर उसमें डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए लीज कर रहे हैं और किसको लीज कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी में फंसे हुए भी देखे, लैंडलॉर्ड जिनके टेनेंट्स अब खाली नहीं करते हैं क्योंकि उनका वहाँ पर एक गाँव में टर्म होता है, ठिया बन गया है, उनका वहाँ पर एक स्थान बन चुका होता है जो लोगों को, ग्राहकों को पता होता है। तो इट्स बी डन वेरी केयरफुली and you should not depend on rental income. And as far as getting the property, sooner you do, the better it is. That was a beautiful interview with sir. And guys, मैं जरूर चाहता हूँ कि आप लोगों को इस शो से एक हिम्मत मिली हो, सेविंग्स करने की एक आदत बनाएं, एक डिसिप्लिन बनाएं और आगे अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत और अपनी फाइनेंशियल सेहत दोनों का ख्याल रखें। With this, me and sir both are signing off. Thank you guys. Thank you very much. अलविदा।